Good morning, friends. Welcome to one more video of Trade with Edge, our pre-market report. चलिए इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट से स्टार्ट करते हैं। सो इंपॉर्टेंट रिजल्ट में यूनाइटेड स्पिरिट रेवेन्यू अप 9%, नेट प्रॉफिट अप 75% एंड मार्जिन्स वर आल्सो अप 15.2% वर्सेस 12%. Dixon exceptional numbers, profit up 379%. This included exceptional item of 250 crores, revenues up 120% and margin up 40 basis points. Zydus Life profit down 1%. Numbers were below estimate, revenues up 15%. Nalco revenue up 13.4%, net profit up 10.5%, margins were 12% versus 10. Ester DM revenues up 2.7%, net profit 79 crore versus 24 crore loss, and margins were at 19.2 crores, 19.2% versus 16.4%. JK Tire net profit down 42.6%, revenues up 1.6%. These were disappointing numbers. Now, on a negative news, Israel preparing strike on Iran's nuclear facility. This suggests US intelligence report. IRCON receives order worth 253 crores. Southwestern Railways. April 8 core industry growth of 0.5%. So it shows lowest growth in last 8 months. Coal India is preparing for two subsidiary IPOs. They are in process of filing DRHP. But as per analyst report, these are not major. This won't unlock major value because size is too. Government experts meet on rising COVID cases in Singapore and Hong Kong. One more negative news. Yesterday, if you look at the market, we have seen a good amount of selling, stock specific. Market down by 1%. Now, what's in store? Future में क्या लग रहा है? Is it, are we close to the peak? मे बी अ शॉर्ट टर्म पीक, वो डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में. सो आज क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिक्लेयर हो रहे हैं? ONGC, इंडिगो, PFC, मैनकाइंड फार्मा, NTPC ग्रीन, RVNL, कोलगेट, ऑयल इंडिया, इंडसइंड बैंक, एस्ट्रल, इरकॉन, नेल्को. So globally, Dow was down 0.17%, Nasdaq was around 0.4%, European markets were positive, Asian market में GIFT Nifty is up 20 points, Nikkei is slightly down, Taiwan is positive, Kospi is positive. So mix Asian markets, slight negative US markets, nothing major from global front. Zydus Life में short built up after numbers, so after weak numbers, यहाँ पे short built up दिख रहा है. So this stock likely to remain weak. Now Nifty में कल OI has gone up by almost 9%. So yes, price was down, OI was up. So Nifty में भी mild short built up हुआ है. You have to be cautious there. We will also discuss sectoral आज view discuss करेंगे. And you will realize that we are close to, तो सारे जो सेक्टर है वो शॉर्ट टर्म एक्सट्रीम पीक के आसपास ट्रेड. हियर डेफिनेटली इट मेक्स सेंस टू बी कॉशियस. तो ओआई फ्रंट पे देखे कल हैवी कॉल राइटिंग हुआ है. वी कैन क्लियरली सी ऑन द चार्ट्स एंड पुट अनवाइंडिंग भी दिख रहा है. जो ट्रैप पुट राइटर्स थे वंस 25,000 लेवल के नीचे, जो 25,000 स्ट्राइक के पुट राइटर्स थे, दे स्टार्टेड पैनिकिंग एंड उनका अनवाइंडिंग स्टार्ट हुआ था कल. Major now 25,000 is the major resistance level for this expiry because वहाँ पे we can see call writing है, and put side पे highest OI is 24,500. So near terms में 24,500 is likely to be a support. अब कल का जो फॉल था, क्या कोई इंडिकेशन था? Yes, if you look at Monday's OI data, पे क्लियरली हैवी कॉल राइटिंग था, एंड जैसे ही लेवल्स ब्रेक हुए, इंट्राडे लेवल्स ब्रेक हुए, वहां पे सेलिंग स्टार्ट हो गया. एंड कल मॉर्निंग से मार्केट सेल मोड में, एंड दिस द रीजन वी आर ऑब्वियसली ट्रेडिंग सिंस लास्ट फ्यू वीक्स एट एक्सट्रीम पॉइंट. जो बॉलिंजर बैंड के एक्सट्रीम पॉइंट पे ट्रेड कर रहे हैं, दैट्स वाई हायर लेवल पे दे सप्लाई वी आर सीइंग. नाउ इंपॉर्टेंट लेवल हियर इज 24,500. जब तक मेंटेन्ड है, वी कैन से वी आर सेफ, बट बिलो दैट लेवल एक डाउन मूव दिख रहा है. दिस इज मिड कैप इंडेक्स एट एक्सट्रीम पॉइंट एंड एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे दिख रहा है. मिड कैप में यू बी कॉशियस.
and yesterday's candle is not very positive. सो इंट्राडे लेवल की बात करें निफ्टी में 24,853 इज स्ट्रॉन्ग अबो लेवल, जिसके ऊपर 24,950 एंड 25,000 के टारगेट्स बैठ सकते हैं, एंड 24,666 इज वीक बिलो लेवल, जिसके विल बी होपिंग फॉर 24,550 एंड 24,400. बैंक निफ्टी क्लियर साइडवेज, सो एक बार एक स्ट्रॉन्ग अपमूव के बाद नाउ एक साइडवेज जोन में है सिंस लास्ट यू कैन से मंथ और सो. 54,420 लेवल के नीचे आई वुड बी वरीड, बिकॉज दैट वुड बी सेकंड अटेम्प्ट टू ब्रेक प्रीवियस स्विंग हाई. तो ये जो एक्सट्रीम पॉइंट पे अक्टूबर का जो स्विंग हाई था, वो ब्रेक 54,400 के नीचे होगा. सो देयर आई वुड बी. इंट्राडे लेवल्स में वीक बिलो लेवल 54,825, जिसके नीचे 54,620 एंड 54,380 के टारगेट्स दिख सकते हैं, एंड स्ट्रॉन्ग अबो लेवल इज 55,240 के ऊपर 55,400 एंड 55,580 के टारगेट्स देख सकते हैं. तो एज डिस्कस्ड, मैं आपसे आज कुछ सेक्टरल चार्ट डिस्कस करना चाहूंगा, सो यू टेक योर ओन कॉल दैट मार्केट कहां पर ट्रेड कर रहा है. तो इफ यू लुक एट पीएसयू बैंक्स, यहाँ पर एक प्रीवियस स्विंग हाई है प्लस वीकली बॉलिंजर बैंड है, एंड पास्ट में वी हैव सीन दिस बैंड हैज एक्टेड एज रेजिस्टेंस. ऑटो इज ऑल्सो एट सिमिलर लाइन, एक स्विंग हाई स्विंग रेंज लेवल है, मल्टीपल स्विंग हाइस हियर, एंड एक वीकली बॉलिंजर बैंड भी है. एनर्जी इंडेक्स ऑल्सो एट सिमिलर लेवल, ऑल्सो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. सो एक जो सेलिंग आने का कल का रीजन था, एट मल्टीपल सेक्टर्स are at their Bollinger top. So even oil and gas, right? So now your call that आपको यहाँ से कैसे ट्रेड करना है, बट माई व्यू इज ऑब्वियसली कॉशियस. मैं लेवल टू लेवल प्ले करूंगा, डेफिनेटली बुलिश ट्रेड भी लेंगे. जैसे ही अगर शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे कोई रिकवरी दिख रहा है, विल टेक बुलिश ट्रेड ऑल्सो. एज फार एज पोजिशनल व्यू इज कंसर्न, माई व्यू फ्रॉम हियर वुड बी अ कॉशियस. So thank you guys. See you tomorrow.